Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Zaigam Ali from King Edward Medical University Lahore, and it is my fourth video regarding the plans for FCPS Part 1. Now we move towards our 4 months plan to cover the whole syllabus. There are mainly two major important points. Number one point is major and minor subjects and divided days, and the second important point is last days before exam. So slides are present in the video so you can read from the slides. One important thing from this point's limelights of success is that never start your preparation with the difficult book. आपने अपनी तैयारी हमेशा उस किताब से शुरू करनी है जो आपको आसान लगती है. कोई मुश्किल किताब या कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट आपने स्टार्ट नहीं करना. और उससे जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, लक और प्रेयर्स. इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात यह है कि 10 किताबें एक मज़मून के लिए पढ़ने से बेहतर है कि यू शुड रीड वन बुक 10 times. Now we move towards the major subjects. The major subjects are anatomy, physiology and special pathology. Total divided days are 50 days out of 4 months. 16 days for anatomy, 18 days for physiology and 16 days for special pathology. In anatomy, we have Snell's Review of Anatomy, Atlas Anatomy for Diagrams, Rabia Ali MCQ's book. Other books are mentioned in the slide. सो एनाटमी के अंदर हमने मेजर पोर्शन की जो बुक्स हैं वो आपको बता दी हैं. ये उनकी हमने पिक्चर्स आपको दिखा दी हैं. सो वो डिवाइड द रीजन्स थोरैक्स एंड बैक 2 days, abdomen and pelvis 3 days, perineum 1 day, upper limb 1.5 days, lower limb 1.5 days, head and neck 3 days. हेड एंड नेक के बारे में आपको ये बात बता दूं कि इसे किसी ऐसी मेजर बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट टू रीड इट फ्रॉम अ स्मॉल बुक देन यू कैन रीड इट. Other anatomy portion included neuroanatomy. Neuroanatomy के लिए recommended book Kaplan's Neuroanatomy. You have 4 days for neuroanatomy. Embryology and histology के लिए कोई special book पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. Read the important points from SK Volume 1 and Tanveer notes and do the Rabia Ali MCQs. So here we have second subject physiology. Total days 18 and my recommended books are PRS Physiology, First Aid Physiology, Rabia Ali MCQs. Systems are divided: cell physiology 1 day, nerve and muscle 2 days, cardiovascular system 3 days, respiratory system 3 days, gastrointestinal system 2 days, renal system 2 days, endocrinology 2 days, neurophysiology 3 days. After physiology, our third subject is special pathology. So total days are 16. My recommended books are First Aid, 9 systems of first aid which are mentioned at the end. And second book is Rabia Ali MCQs. Other books are mentioned in the slide. It is your choice. So we divide the days: cardiovascular system 3 days, respiratory system 2 days, urogenital system 3 days, gastrointestinal system 2 days, nervous system 2 days, endocrinology 2 days, hematology and oncology 2 days, musculoskeletal system and skin 2 days. After covering the major subjects, now we move to our minor subjects. So total days are 15. Number one book is biochemistry or subject is biochemistry, 3 days, general pathology and immunology 4 days, general plus systemic pharmacology 3 days, microbiology 4 days, biostate and behavior sciences 1 day. So these are book for minors. Fast Aid Radiant Notes or Last Day Revision Notes by SK. So it is your choice. You want to read it from the First Aid or Fast Aid Radiant Notes or these small books. Our first minor subject is biochemistry. So we have total 3 days. Books recommended. इसमें से आपने जो फर्स्ट पॉइंट है सिर्फ एक बुक पढ़नी है. ये आपकी चॉइस है कि इस सब में से आप कौन सी बुक पढ़ेंगे. अगर आप मेरी रिकमेंडेशंस पूछेंगे तो आई विल गो विद द फास्ट एड रेडियंट नोट्स एंड राबिया अली एमसीक्यूज. नंबर 2 पे है पॉइंट फ्रॉम द एसके वॉल्यूम 1 एंड नंबर 3 इज राबिया अली एमसीक्यूज. Second subject is general pathology and immunology. Total days are 4. My recommended books are Fast Aid Radiant Notes. Number 2 is Rabia Ali MCQs. Third subject is pharmacology, general plus systemic. There is no need to waste your time on this portion. इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर के MCQs which is more than enough और फर्स्ट एड फार्माकोलॉजी का वो पोर्शन जो इसने स्टार्ट में जनरल के तौर पर दिया हुआ है
और सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी जो उसने चैप्टर के आखिर में मेंशन किया इज मोर देन इनफ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाला पोर्शन स्किप कर सकते हैं, सिर्फ फास्ट रिवीजन नोट से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ सकते हैं और एस के लास्ट ईयर रिवीजन नोट से इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। मोस्टली पास पेपर के एमसीक्यूज फार्माकोलॉजी के पोर्शन को कवर कर देते हैं। So our third subject or fourth subject is microbiology. So total days are 4. माइक्रोबायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने टेबल्स और इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज फर्स्ट एड से करने हैं। वायरस और फंगस के सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट वायरसेस और फंगाई जो से हैं उन पे आपने फोकस करना है। पैरासाइट्स के टेबल इंपॉर्टेंट है वो आपने करने हैं। एस के वॉल्यूम 1 के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइक्रोबायोलॉजी के दिए हैं वो आपने एक दफ़ा पढ़ने हैं और तनवीर नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं वो आपने पढ़ने हैं। इसके साथ आपने एमसीक्यूज करने हैं राबिया अली से। सो 90 टू 100% आपका पोर्शन माइक्रोबायोलॉजी का कवर हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो वो फास्ट रीडिंग नोट से पूरी माइक्रोबायोलॉजी पढ़े और राबिया अली एमसीक्यू कर सकता है। और जिसको बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने में तो ये भी ठीक है, आप एस के लास्ट डेज रिवीजन नोट्स पढ़ सकते हैं और साथ में राबिया अली एमसीक्यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका मेन फोकस जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टेबल्स और पास्ट एमसीक्यूज पर होना चाहिए। अगला हमारे पास माइनर और लास्ट सब्जेक्ट है बायोस्टैट एंड बिहेवियर साइंस। तो इसके अंदर हमने सिर्फ एक दिन देना है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लक बेस्ड होते हैं। आपने सिर्फ किसी छोटी बुक से, फास्ट रेडियन नोट से या एस के लास्ट या रिवीजन नोट से इसके पास पेपर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट रीड कंप्लीट करने के बाद हम मूव करते हैं अपनी सेकंड रिवीजन की तरफ। तो सेकंड रिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके ऊपर मेंशन किए गए हैं कि आपने अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मेजर थ्योरी बुक्स के ऊपर, आपने मेनली फोकस करना है एमसीक्यूज बुक्स के ऊपर। और जब आपके लास्ट 30 डेज रह जाएं, आउट ऑफ दीज 55 डेज लास्ट 30 डेज रह जाएं, तो साथ में आपने पास पेपर की एमसीक्यूज बुक रफीउल्लाह या एसके में से गोल्डन फाइल स्टार्ट कर देनी है और एटलीस्ट लास्ट 4 और 3 गोल्डन फाइल्स ऑफ योर ओन स्पेशलिटी। इसके साथ आपने रोज के 10 टू 15 पेजेस तनवीर नोट से लास्ट 6 सेशंस के पढ़ने हैं जब आपके लास्ट 30 डेज रह जाएं। सेकेंड डेज की रिवीजन के अंदर हमने डिवाइडेड डेज ऐसे रखे हैं कि ग्रॉस एनाटमी को 8 डेज देंगे, यूरो एनाटमी 2 डेज, फिजियोलॉजी 10 डेज, स्पेशल पैथोलॉजी 10 डेज, जनरल पैथोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी 2 डेज, बायोकेमिस्ट्री 1 डे, माइक्रोबायोलॉजी 2 डेज एंड अदर माइनर्स 2 डेज. So there are important 2 MCQs books. Major MCQs book is FCPS की जो राबिया अली पल्स ऑफ FCPS बाय राबिया अली और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर मेंशन है जिसके आपने लास्ट 5 और 6 सेशंस करने हैं, वो है तनवीर नोट्स। ये अदर बुक्स हैं, इसमें से आपकी चॉइस है कि आप रफीउल्लाह पढ़ना चाहते हैं कि एसके। मैंने पिछली वीडियो के अंदर दोनों का कंपैरिजन आपको बताया था, आप वहां से वो वीडियो देख के इसका कंपैरिजन देख सकते हैं। So now we move to our last plan, for the last 20 days. So इसके अंदर आपने मेनली फोकस अपनी सिर्फ एमसीक्यूज बुक के ऊपर करना है। जब आपके लास्ट 20 डेज स्टार्ट हो जाएं तो आपने अपनी थ्योरी बुक्स को एक साइड पे रख देना है और सिर्फ अपनी गोल्डन फाइल्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने फेसबुक ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से उठाए हैं उन सबको बार बार रिवाइज करना है। अगर आपका थ्योरी वाला पोर्शन नहीं भी मजबूत तो इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने मेनली एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके एमसीक्यूज के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, अबव 80% आ रहे हैं ड्यूरिंग अटेम्प्टिंग दीज एमसीक्यूज, सो आपको सेटिस्फाई रहना चाहिए, आपको अपने आप को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपने एमसीक्यूज के साथ साथ जो सी तनवीर नोट्स हैं और या जो एसके है या एफसीपीएस पल्स राबिया अली है इसके राटास को साथ साथ रखना है। द मोस्ट फेमस राटास बाय डॉक्टर दुरे नयाब, आपने उनके राटास को देखना है जो कि उन्होंने एसके के राटास भी तैयार किए हैं और साथ में जो ऊपर राबिया अली है उसके राटास भी तैयार किए हैं। एग्जाम से एक दिन पहले आपने प्रॉपर सो के जाना है और नेक्स्ट डे पे अपना एडमिटेंस कार्ड साथ लेके जाना है। So there is 4-month plan for all guys. Best wishes and may Allah help you on every step.